Assalamualaikum dear students. I hope you all are doing fine. I am Amreen Ahmed, your course instructor, and today we will resume our lesson, The Man Who Was a Hospital, written by Jerome K. Jerome. As I suppose you must have gone through the previous lecture, so you must be having an idea what this whole chapter is all about. Let's just recapitulate the previous two lectures because we are meeting again after the weekend. So let's see what this whole chapter is about. This is actually a story of a man who is calling himself a hospital. And why he is saying so? Because he believes that he has all the diseases in the world. But there is only one disease which he has not got, and that is the housemaid's knee. And he becomes desperate that why he does not have this disease. And how does he come to know that why he has, or how does he come to know that he has so many diseases? He actually self-diagnosed himself by reading it within a book. For example, he actually goes to a library, and he takes a dictionary, a medical dictionary, and he starts reading all the diseases from A to Z. And after reading the, you can say, indications of the, or the symptoms of the diseases, he came to know that actually he comes to know that actually he is having all the diseases. So he gets too much worried. He goes to the doctor, the medical man. The medical man is actually his friend. Let's see what he has to do now. We have, I think, left here, so we will resume from this very paragraph. This is page number 21. I went to my medical man. I think we have done it. Okay, so we have, I think, done it. We discussed that he went to the medical man, and medical man just check him like an ordinary uh, patient. So he became furious. He went directly to him and he asked that I must tell that what is the matter with myself. I must tell him that I have all the diseases of the pathology. So let's start here. Well, what's the matter with you? Page number 21. You open up your book and be with me. This is almost the middle of the page. Well, what's the matter with you? I said, I will not take up your time, dear boy, with telling you what is the matter with me. ये जाता है, वो जो कंपाउंडर टाइप होता है उसके पास जाता है, सॉरी, जो डॉक्टर उसको बोलता है कि मैं तुम्हारा टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा ये बताने के लिए कि मुझे क्या हुआ है. लाइफ इज़ ब्रीफ, ज़िंदगी जो है वो बहुत छोटी है. इसके लिए छोटी इसलिए है ज़िंदगी कि ये मुख्तसर इसलिए क्योंकि उसको सारी डिजीज़ है और ये नहीं चाहता कि क्योंकि इससे तो सारी बीमारियां हैं, तो इसके लिए तो ज़िंदगी जो है वो बहुत मुख्तसर है. तो दैट इज़ व्हाई ही इज सेइंग लाइफ इज़ ब्रीफ एंड यू माइट पास अवे बिफोर आई हैड फिनिश. और तुम उससे भी पहले मर सकते हो कि मैं अपनी बात पूरी करूं. यानी कि ज़िंदगी इतनी मुख्तसर और इतनी अनरिलायबल है कि इससे पहले कि मैं अपनी बात फिनिश करूं तुम हो सकता है मर ही जाओ. तो आयरनिकली बजाय ये कि अपने कहे कि मैं मर ही जाऊं, राइट, उसको कह रहा है डॉक्टर को कि शायद तुम मर ही जाओ या तुम जो है वो पास अवे हो जाओ. क्यों? क्योंकि इसे डिजीज़ बहुत सारी है ना, तो ये हर एक डिजीज़ के बारे में बताएगा तो टाइम तो बहुत ज़्यादा लगेगा. इतना टाइम लग जाएगा कि अगला बंदा सुनते सुनते ही मर जाएगा. बट आई विल टेल यू व्हाट इज़ नॉट द मैटर विथ मी. तो वह कहता है बजाय ये कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि मेरे साथ मसला क्या है, ये क्यों ना हो कि मैं तुम्हें ये बताऊँ कि मेरे साथ मसला क्या नहीं है. क्योंकि इसके साथ इतने मसाइल हैं, इतनी डिजीज़ हैं, किस किस डिजीज़ के बारे में बताएगा. तो बेहतर ये है कि ये उस एक वाहिद डिजीज़ के बारे में बताए जो इसको नहीं है. ठीक है, तो वो कह रहा है कि चले मैं तुम्हें वो बताता हूँ. आई हैव नॉट गॉट हाउसमेट नहीं, मुझे हाउसमेट नहीं है. वाई आई हैव नॉट गॉट हाउसमेट नहीं, आई कैन नॉट टेल. और मुझे ये क्यों नहीं है ये मुझे नहीं पता. बट द फैक्ट रिमेन्स दैट आई हैव नॉट गेट इट. लेकिन सच्चाई तो बस यही है कि मुझे ये बीमारी नहीं है. एवरीथिंग एल्स हाउएवर आई हैव गॉट. बाकी दुनिया की जितनी बीमारी हैं वो मुझे हैं. एंड आई टोल्ड हिम हाउ आई केम टू डिस्कवर इट एट ऑल. और फिर मैंने ये भी उसको बताया कि ये मैंने ये डिस्कवरी दरियाफ्त कैसे की है कि मुझे इतनी सारी बीमारी. देन ही ओपन मी एंड लुक डाउन मी, फिर एक्सक्यूज मी, एंड क्लच होल्ड ऑफ माई रिस्ट, एंड देन ही hit me over the chest
when I wasn't expecting it. A cowardly thing to do. अब वो कहता है कि अब जो है वो डॉक्टर जो है वो सिर्फ तसल्ली से देख रहा है, थोड़ा अटेंशन के साथ, बिकॉज नाउ ही नोज दैट दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग केस. सो उसने उनको ओपन करके देखा, उसने शर्ट पकड़ाई, लुक डाउन दी, मुझे देखा, मेरा रिस्ट पकड़ा, और फिर उसने क्या किया, एक छोटे से हैमर से उनको चेस्ट पे हिट किया. अक्सर ये हैमर्स वगैरह होते हैं, ठीक है. बहरहाल इसमें लिखा नहीं है, हैमर से हिट किया. तो वो कह रहा है क्योंकि मैं इसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये मुझे हिट करेगा चेस्ट पे, तो मैं एकदम से थोड़ा मैंने रिएक्शन ऐसा दिया. लेकिन वो कह रहा है कि डॉक्टर ने ये बड़ी कावड़ली हरकत की, बड़ी बुज़दिलाना हरकत की, उसे मुझे बता के करना चाहिए था कोई भी काम उसने करना. आई कॉल इट एंड इमीडिएटली आफ्टरवर्ड्स बट इट मी विद द साइड ऑफ हिज हेड. और फिर उसने मुझे क्या किया, मुझे बट किया, मुझे मारा अपने हेड की साइड से. आफ्टर दैट ही सैट डाउन एंड रोट आउट अ प्रिस्क्रिप्शन. फिर वो बैठा, उसने अपनी प्रिस्क्रिप्शन लिखी, उसने मुझे दवाइयाँ लिख दी, और फिर उसने वो प्रिस्क्रिप्शन मुझे दे दिया. आई पुट इन माई पॉकेट एंड वेंट आउट. मैंने वो पॉकेट में डाला, अपनी जेब में, और चला गया. आई डिड नॉट ओपन इट. आई टुक इट टू द नियरेस्ट केमिस्ट एंड हैंडेड इट, एंड द मैन read it and then handed it back. What he is saying that he did not read the prescription. He went directly to the drug store. He gave it to the chemist so that he could give him the prescribed medicine. But the chemist read it and he handed it back. उसने वो पढ़ा प्रिस्क्रिप्शन और उससे वापस कर दिया. He said he did not keep it. उसने कहा मैं ये नहीं रख सकता, या मैं नहीं रखता, मतलब ये जो दिया हुआ है इसमें नुस्खा, वो हमारे घर पे नहीं होता, हमारी दुकान पे नहीं होता. आई सेड यू आर अ केमिस्ट. तुम तो केमिस्ट हो ना. बाहर मुल्कों में जो बेटा ड्रग स्टोर्स के पे लोग होते हैं या जो ड्रग स्टोर्स चलाते हैं वो बाकायदा केमिस्ट होते हैं, तो उन्हें केमिस्ट ही कहा जाता है या फार्मासिस्ट कहा जाता है. तो वो कहता है आई एम अ केमिस्ट. हाँ मैं केमिस्ट ही हूँ, लेकिन जो तुम मांग रहे हो, इफ़ आई वर अ कोऑपरेटिव स्टोर एंड अ फैमिली होटल कंबाइंड, आई माइट बी एबल टू oblige you. बट बीइंग ओनली अ केमिस्ट हैम्पर्स मी. बोलता है हाँ मैं दवाई वाला हूँ भाई, मेरी ड्रग स्टोर है. अगर मेरा कोई कोऑपरेटिव बिजनेस होता है, स्टोर होते हैं, मतलब ये जनरल स्टोर्स टाइप होते हैं, और मेरा एक फैमिली होटल होता, तो फिर शायद मैं तुम्हारी चीज़ें तुम्हें दे सकता जो तुम्हें डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब किए. लेकिन मैं चूँकि सिर्फ एक केमिस्ट हूँ तो मैं तुम्हें ये सब चीज़ें नहीं दे सकता. आई रेड द प्रिस्क्रिप्शन, इट रेन. फिर इसको थोड़ा ताज्जुब हुआ और इसने वो प्रिस्क्रिप्शन जो थी वो पढ़ी, वो नुस्खा जो था वो पढ़ा. उस पर लिखा था 10 mile walk every morning, bed at 11 sharp every night, and don't stuff your head with things you don't understand. सुबह आप 10 मील वॉक करें और शाम रात को 11 बजे, ठीक 11 बजे सो जाएं. ज़ाहिर है जब आप सुबह 10 मील वॉक करेंगे, पूरे दिन काम करेंगे, रात को आप इतने थक जाएंगे कि आपको दुनिया जान का होश नहीं होगा और आप फ़ौरन से सो जाएंगे. कहने का मतलब ये है कि आपको सोचने का टाइम नहीं मिलेगा. फजूल की सोचें किन को आती हैं? जो फारिग लोग होते हैं. तो इसीलिए वो कह रहे हैं, हम ऐसा कहा भी जाता है ना, खाली दिमाग शैतान का घर. तो वो कह रहे हैं अपने आप को कामों में बिज़ी करें, एंड डोंट स्टफ योर हेड. और ऐसी चीज़ों से अपना दिमाग मत भरें जिनकी आपको समझ नहीं है. यानी कि ज़ाहिर एक मेडिकल प्रोफेशन है, एक मेडिसिन एक प्रोफेशनल चीज़ है, एक एकेडमिक चीज़ है, तो वो सिर्फ डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं, हर कोई डॉक्टर तो नहीं बन सकता. आई फॉलोड द डायरेक्शन विद द हैप्पी रिजल्ट्स. तो वो कहते हैं मैंने ये जो मुझे हिदायत की गई थी उनको मैंने बिल्कुल फॉलो किया और उसके बड़े अच्छे नतीजे निकले. स्पीकिंग टू माई सेल्फ दैट माई लाइफ वॉज प्रिजर्व एंड इज़ स्टिल गोइंग ऑन. वो कहता है और अगर मैं सच कहूँ, मेरे दिल की बात तो यह है कि इस प्रिस्क्रिप्शन ने, इस डॉक्टर ने मेरी ज़िंदगी बचा ली और मैं अभी तक ज़िंदा हूँ, स्टिल गोइंग ऑन. अगर ये डॉक्टर ना मिलता तो मुझे तो इतनी बीमारियाँ थी, मैंने मर ही जाना था. So we have ended this chapter. So let's take a look on the notes. Words explained. I think we have done all the words. Malignant, accusation, crawl, butted, hamper, scourge. So let's see, answer these questions. How did Jairam ke Jaran come to suspect that his liver was out of order? He read a leaflet of a pill. ठीक है जी. What was the disease discovered he did not have? That was house-smithy. Was he pleased to find he did not have it? No, he wasn't. You may explain the answer by yourself because we have discussed all these things. Why should
he be an acquisition to the medical class because he had all the uh, diseases. So everybody who wanted to study medicine or pathology, he would study him, and he did not have he does not have to go in throughout the hospital and meet to the different patients. Describe his visit to the medical man. We have just described it. He thought he was doing the doctor good turn by going to him. Why? उसने सोचा था कि मैं जाके डॉक्टर को बताता हूँ ये मुझे सही तरह से बात नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि डॉक्टर ने उसको बिल्कुल नॉर्मली चेक किया था, जैसे वो आम मरीजों को चेक करता है, और फिर ज़ाहिर इसके साथ कोई बात भी नहीं थी ऐसी कोई ख़ास, इस वजह से तो इसको लगा कि डॉक्टर डिड हैज़ नॉट एक्चुअली डायग्नोज्ड। डॉक्टर को पता ही नहीं कि मेरे साथ मसला क्या है। What was the prescription given to him by the doctor? डॉक्टर ने उसको 3 प्रिस्क्रिप्शन दी, 10 मील की वॉक, 11 बजे सोना और अपने दिमाग को फजूल बातों से नहीं भरना। Describe his visit to the chemist that we have just described. What is the significance of doctor's advice? Don't stuff your head with the thing you don't understand. ये बहुत ही सिग्निफिकेंस एडवाइस है। जिन बातों का पता ना हो या जिनका आपसे ताल्लुक़ ना हो या जिन बातों को आप समझ नहीं सकते, अपने दिमाग में मुस्तकिल उनको भरने का कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, अदरवाइज आप खुद ही परेशान होंगे। सो वी हैव एंडेड दिस चैप्टर। टुमारो इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट, no, we won't be starting a new chapter. We would rather go for some idiomatic expression. Hope so. Otherwise, we will be doing Mr. Chips. So, until then, take care and please mark your attendance. There is a Google form attached in the comment. You open up the comment. There is a form. You fill it and you submit it so that your attendance could be recorded. Thank you very much. Allah Hafiz.